So, good morning मेरे प्यारे बच्चों, and good morning to all my friends. Today I am going to discuss Excel and XC, which is very important as far as CBSE examination and board examinations are concerned. Generally, this question is asked in the examination on the basis of Excel and XC. So previously I have already discussed XL and XC when AC flows through an inductor or AC flows through a capacitor, but today combinedly I will give you in detail what is XL and XC and what type of numericals are asked in the not only in CBSE examination but in competitive examination also. So first of all I am going to discuss here XL. XL means you know very well it is inductive reactance. It is inductive reactance. Inductive reactance means you know very well when any component, any device is connected in a circuit, and when that device is connected with a source of EMF, then it opposes the flow of current, always opposes, not supports. So that opposition is known as something. If resistor is there, then that opposition in the path of the current is known as resistance. And when an inductor is connected, यानी ये inductor वाली बात आ गई, this inductor is connected with a source of EMF, suppose AC source I am taking or maybe DC also, DC भी ले सकता हूँ है ना, AC source of EMF, then what happens to the current, that we have to find. एंड यू नो वेरी वेल, जैसे ही किसी क्वाइल का हॉस्पिटल में जन्म होता है तो डॉक्टर और नर्स क्या चिल्लाते हैं, एल आया, एल, एल मतलब रिएक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. So clearly I am going to give you. So what is this first of all? It is the opposition in the path of current caused by inductor, or the opposition exerted by or caused by or given by inductor in the path of or in the path of the flow of current is known as inductive reactance. And inductive reactance is given by omega L, and omega I think you know it is 2 pi nu. So this is our basic formula, and from here it is very easy to know that it is directly proportional to omega, it is directly proportional to L, and XL is directly proportional to nu. What does it mean? It means that if omega increases, omega means angular frequency और angular velocity, इसकी यूनिट भी बताता जाऊंगा साथ में. इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड और रेडियन पर सेकेंड. तो न्यूमेरिकल में it's very easy for you to find it. L means it is self inductance और इंडक्टेंस भी कहते हैं इसको, और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. तीन नाम है और इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है हेनरी. एन एल इक्वल टू 5/I याद होगा, यानी वेबर पर एम्पियर भी होता है. तो इट्स यूनिट इज हेनरी और वेबर पर एम्पियर. वेबर पर एम्पियर भी कह सकते हैं इसको. ओके, एंड न्यू इज it is only frequency of the source and its unit is hertz. करेक्ट बच्चों?
Then what is the unit of XL? इसकी होती है SI unit या unit ohm wire. It is opposition. It means R is also ohm and XL is also ohm. ये याद रखना आप. Actually sometimes in the question given that कि एक coil of inductance 2 Henry, तो हम 2 Henry को क्या समझ लेते हैं? XL. पर XL तो ओम में होता है. हेनरी मतलब L है, सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, अब यहां से ये पता लग रहा है कि इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड ओमेगा, एक्सएल एंड एल and XL and nu, so they are directly proportional. So if I plot a graph here XL means opposition, and here suppose I am taking omega. So when omega is 0, XL is also 0, and they are directly proportional, so it is a straight line. This is the graph between XL and omega. Suppose you want to draw a graph between XL and L, तो वो भी यही आएगा, वो भी यही आने वाला है. If nu also same. Anything you can take, your graph is like this. It means opposition is linearly with respect to omega, nu or L in case of XL. Okay. Now what is the इफेक्ट ऑफ एक्सएल इफ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज एसी और डीसी? अब ये वाली बात हमारे सामने क्लियर नहीं है, तो मैं दोनों चीजें आपके सामने ले रहा हूं. देखिए, नंबर 1, अब मैं ले रहा हूं सोर्स ऑफ ईएमएफ. ओके, सो सपोज फर्स्ट इज एसी सोर्स. आई एम टेकिंग AC source, and you know very well when source is AC. थोड़ा मैं इसको मूव कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है, ठीक है. AC source at our house, at our home, we are getting AC source, and you know that frequency of AC source at our home is 50 Hz, and ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि AC हार्मोनिक्स है. So first I am using AC source. When AC source, then frequency is some finite value. It means it is not 0, some finite value is there. And XL equal to होता है omega L और 2 pi nu L. So XL equal to 2 pi into nu AC. Nu AC means finite value into L. L also have some value. So you are multiplying 2 pi, finite value of AC and L. इतनी सारी टर्म्स हम इनटू कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर आएगा. It means XL is equal to finite value. What does it means? It means that inductor opposes AC. सीधी सी बात है, अगर आपने AC से कनेक्ट किया तो ये अपोज करेगा. Therefore inductor opposes flow of AC. मैं आपको एक दिखाता भी हूं. देखिए, सपोज हियर ए बल्ब इज कनेक्टेड. नाउ व्हाट हैपेंस, एंड हियर की, आई एम टेकिंग ए की ऑल्सो. ठीक है, सपोज की इज क्लोज्ड, और ध्यान से समझना, key is closed, then what happens? In the inductor AC flows, and you know very well it opposes AC. It means brightness of the bulb is less. Bulb bright less. The glow of the bulb is less because inductor opposes AC, and also it does not glow instantly. ये ऐसे खुले, ऐसे जलेगा जैसे फूल खिलता है ना, धीरे धीरे, ये देखो, एंड पूरा नहीं खिलेगा. क्यों? बिकॉज इट अपोजेस. ऑल्सो व्हाई? दिस इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन. ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन it induces an EMF in the opposite direction which opposes the flow of AC, and due to that
current increases from 0 to maximum and takes it finite time. So bulb glows with less intensity and it takes finite time to glow, not instantly. और अगर आप ऑफ करोगे, if K is open now, then what happens? When K is open, it means when switch is off, the bulb does not, the glow of the bulb does not become zero instantly. बल्ब ऐसे जल रहा था, अब धीरे धीरे कम होगा. ये देखिए, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे जला था ये. क्यों? Now when you open the circuit, open the key, now current is decaying. When current is decaying, now induced EMF supports the current. यही तो खासियत है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, कि जब करंट इंक्रीज होती है तो कहता है इंक्रीज मत हो, और जब मरने लगती है तो मरने नहीं देता, तो धीरे धीरे मरती करंट. तो बल्ब धीरे धीरे बुझता है, एकदम से नहीं जलेगा और ना एकदम से बुझेगा. रेजिस्टेंस में एकदम से जल जाएगा, एकदम से बुझ जाएगा. यहाँ ऐसा नहीं होता. एक और चीज, सपोज ये ऑन है और यहाँ मैंने एक सॉफ्ट आयरन की रॉड डाल दी. इफ आई इंसर्ट ए सॉफ्ट आयरन रॉड, अब क्या होगा? तो सॉफ्ट आयरन रॉड insert here, it means L increases. When L increases, XL is directly proportional to L, so XL also increases. Opposition increases, so current decreases. Current कैसे होती है आपको पता है? IV equal to EV upon under root R square plus XL square here. R मतलब resistance of the bulb. So XL increases, this Z increases, and when Z increases, then current decreases, so brightness और कम हो जाएगी. अगर आपने सॉफ्ट आयरन रॉड डाल दी तो XL increases, current decreases, brightness decreases. और रॉड निकाल दी तो ब्राइटनेस फिर बढ़ जाएगी थोड़ी, और मैक्सिमम नहीं होगी कभी. नाउ इफ वी आर टेकिंग DC सोर्स, सो DC में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है. इट मीन्स XL equal to 2 pi into 0 into L equal to 0. Therefore, inductor does not oppose DC. ये देखो, DC का अपोज ही नहीं करेगा भाई, ये DC का अपोज नहीं करने वाला. क्यों नहीं करेगा? Because frequency of DC is 0. तो suppose here I am using a cell. So bulb glows with maximum brightness after fraction of second. And if you insert a soft iron rod also, there will be no change in the brightness. Brightness is remains same. Why? Because XL is 0 for DC. तो आप L बढ़ाओ या कम करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो ये मैंने आपको XL बताया. एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर XC पे जा रहा हूँ, है ना. XC मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस. So it is the opposition caused by capacitor, it is the opposition in the path of current posed by capacitor. तो मैं यहीं का यहीं चेंज करता जाऊँ, आप देखना, है ना. ये थोड़ी सी चालाकी है मेरे अंदर कि कैसे चीज़ों को यूज करना है. चलिए आगे चलते हैं. तो XC आई थिंक यू नो वेरी वेल. इट इज 1 upon omega c, that is 1 upon 2 pi mu c बच्चों. So XC is inversely proportional हो गया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल C मीन्स कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस भी कहते हैं इसको. क्या कहते हैं बच्चों मेरे? कैपेसिटेंस भी कहते हैं इसको. ओके, कैपेसिटर
और कैपेसिटेंस, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो व्हाट अबाउट न्यू, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल न्यू। तो यहाँ सब उल्टा खेल हो रहा है, देखो आप। अच्छा, इसकी यूनिट थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये हटा देंगे। द यूनिट ऑफ कैपेसिटर यू नो फैराड होती है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, that already we have discussed in electrostatics. If you have any doubt, you can go there and see my videos. So now I plot a graph between xc and omega c and a. तो ओमेगा के लिए करता हूँ, देखिए पहले. So you know very well this is inversely proportional. Inversely means if this is less, this is more. ठीक कह रहा हूँ ना मैं? So look here. It is inversely proportional. It is now inversely proportional, bachcho. And if you are taking C also, inversely proportional. If you are taking nu also, it is inversely proportional. Correct, bachcho? Now move here. ये तो मैंने किया ही नहीं, गलती हो गई. Here I have to take a capacitor of capacitance C and this is connected with a bulb. और पहले मैं AC से कनेक्ट कर देता हूँ. I am connecting with AC. Okay. So AC has finite value and XC you know very well. XC is 1 upon omega C, that is 1 upon 2 pi nu C. Okay. अब आप कहोगे अरे दिख ही नहीं रहा यार सर, ये क्या कर दिया आपने. सॉरी यार, गलती हो ही जाती है ना. चलो. Now source of EMF is suppose AC source of EMF I am connecting here. So nu of AC is finite value, we know very well. So XC is 1 upon omega C, that is 1 upon 2 pi nu C. C. Okay. So क्या वैल्यू आती देखते हैं. So XC equal to 1 upon 2 pi nu of AC is finite value and capacitance. It means 1 is divided by 2 pi finite value of AC and also capacitance. तो 1 को इतने सारे लोगों से डिवाइड करेंगे तो 1 तो बेचारा मरने जैसा हो जाएगा. मरेगा तो नहीं, पर बिल्कुल मरने जैसा हो गया, मतलब इक्विवेलेंट टू 0. इट मीन्स कैपेसिटर does not oppose, कैपेसिटर does not oppose flow of AC. अरे उल्टा हो गया यार, इंडक्टर अपोज कर रहा था एसी का, कैपेसिटर बोला मैं तो नहीं करूंगा. उसने कोई अपोज बिल्कुल नहीं किया, उसने अपोज. इट मीन्स व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ एसी देन इट इज ग्लोइंग विथ मैक्सिमम ब्राइटनेस. हाँ, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी इसकी, वो या बहुत बहुत कम रहेगा, मतलब ब्राइटनेस नीड्स टू बी या इक्विवेलेंट टू मैक्सिमम मान लेता हूँ. तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आपको बताता हूँ. If a dielectric slab is inserted whose dielectric constant is K, अगर यहाँ पर मैंने एक स्लैब डाल दी इसके अंदर तो क्या होगा. तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो यू नो वेरी वेल when K or dielectric constant is inserted here, then what happens? You know very well, capacity increases, and when capacity increases, XC decreases. XC decreases means current increases and more brightness is there. एक सेकंड के लिए मैं चेंज करता हूँ, फ्लाइट मोड नहीं किया है शायद, तो गड़बड़ हो गई. मोड इज नॉट हियर, आई एम सॉरी. अब हो गया फ्लाइट. ओके. सो if K is inserted here, then capacity increases. When capacity increases, XC decreases. When XC decreases, so XC यहाँ पर decrease हो रहा है, मतलब we are taking XL here, not XL here, here XC. IV equal to EV upon under root R square plus XC square EV upon Z. तो current decide करती है brightness को. So now what happens here?
your Z is R square plus X square. R means resistance of the bulb. So when capacitance increases, then Xc decreases. Xc decreases means Z decreases, IV increases, brightness increases. और बढ़ जाएगी brightness. DC का क्या होगा अगर DC से कनेक्ट करें तो? So when we are connected with DC, DC of frequency of DC is 0. So XL क्या होगा, XC क्या होगा देखते हैं. So देखो यहाँ पर जगह है मेरे पास. So I am using this space. So XC equal to 1 upon 2 pi into 0 into C. And when anything is divided by 0 क्या होता है बोलो? अरे इनफाइनाइट. इसका मतलब ये इनफाइनाइट अपोजिशन दे रहा है. इट मीन्स इट ब्लॉक्स डीसी. कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है. सो कैपेसिटर blocks DC. So suppose if I am connecting here a cell, now what happens to the brightness? अरे काय की brightness? बल्ब जलेगा ही. Bulb does not glow because capacitor blocks DC. आज ये क्वेश्चन आता है. तो मुझे लगता है ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा सब, है ना? नाउ वी आर गोइंग फॉर दी न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं एंड उसके बाद आप आराम कर सकते हो. सो जल्दी जल्दी मूव करूंगा मैं. न्यूमेरिकल्स आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑन द 2 साइड्स ऑफ दिस बोर्ड. तो पहले एक तरफ चलते हैं हम लोग और फिर देखते हैं कि क्या होता है. याद दिख रहा है आपको? क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको. देखिए दिख रहे हैं ना? हाँ मुझे भी दिख रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लुक हियर. This is first question. Here 1, 2, 3. 3 graphs are given. Okay. In first graph, or in all the graphs, frequency on the x-axis and opposition to the current along y-axis. And we have to find for which device this graph belongs to. The graph belongs to which device? ये हमको सोचना पड़ेगा. तो देखते हैं यहाँ पर. Here frequency is given and opposition and it is parallel to x-axis. It means if frequency increases or decreases, there is no change in the opposition. तो ये किससे होता है कि फ्रीक्वेंसी कम करो या ज्यादा करो तो भी फर्क नहीं पड़ता. Resistance, you know very well. In resistor there is no variation in opposition with frequency. तो इसका ये A पार्ट है मान लो A. This is B and this is C. तो मैं A का आंसर बता रहा हूँ. इसका A का फर्स्ट क्वेश्चन है. A में we know R is independent of frequency. Therefore, graph A belongs to resistor. Why? Because with frequency there is no change in the opposition. Number B. Now what happens? If frequency increases, opposition of current also increases and it is linear variation. So here opposition to current is directly proportional to nu. और अभी पढ़ा था हमने XL equal to omega L equal to 2 pi nu L. So XL directly proportional nu. It means this belongs to inductor. It means B belongs to inductor. Okay. अब C को देखें. In C,
when frequency is less opposition is more and frequency increases opposition decreases. It means ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. सो ये किस केस में होगा? सो अपोजिशन ऑफ करंट इज हियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये सी बता रहा हूं यहीं पर, सी. इट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इट इज फॉर, हाँ सच बोला आपने, इट इज फॉर कैपेसिटर. XC इक्वल टू 1 upon omega c equal to 1 upon 2 pi nu c. So XC is inversely proportional nu. So C belongs to capacitor. C belongs to capacitor. Okay. So again, if opposition is independent of frequency, resistor. If it is linear variation, it is inductor. And if it is inversely proportional rectangular hyperbola, it is कैपेसिटर होगा ये. ओके, ये हो गया भैया. अब सेकंड पे आते हैं. इन सेकंड क्वेश्चन, इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड बल्ब इज कनेक्टेड विथ एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ. नाउ वो कह रहा है कि न्यू डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डबल, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एल एंड सी सो दैट ग्लो बिकम्स अनचेंज. ग्लो चेंज नहीं होना चाहिए वो कह रहा है, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है. तो ग्लो किस पे डिपेंड करता है? यू नो वेरी वेल, ग्लो डिपेंड्स अपॉन करंट. वी नो, अगर आपको ब्राइटनेस नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है. वी नो brightness of bulb is directly proportional to IV square. It means RMS value जो करंट होती है उसका स्क्वायर होता है. So if RMS current is more, brightness is more. So we know brightness of bulb is directly proportional to IV square. It means if current is more, then brightness is more. And IV is equal to EV upon Z equal to EV upon under root R square plus XL minus XC का स्क्वायर. बट डोंट टेल मी कि सर ये R कहाँ से आ गया? अरे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज R यार, है ना? सो एक और इसको थोड़ा और ठीक कर लेते. दिस इज EV. EV मीन्स ERMS ऑल्सो यू कैन टेल. हियर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC क्या होता है? 2 XL. XL is 2 pi mu L minus 1 upon 2 pi mu C का होल स्क्वायर. ये है. अब किया क्या इन्होंने? इन्होंने किया है कि बल्ब अभी जल रहा है, ठीक है? तो बल्ब तो जलेगा ही यार, जलेगा, ये जल रहा, राइट? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एल एंड सी सो दैट ग्लो बिकम्स अनचेंज. एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है लेकिन हमको ग्लो सेम रखना है. तो लुक हियर, if frequency increases, frequency double, this also double. तो इसको कम करना पड़ेगा. तो कम कैसे करेंगे? L जो होगा उसको L/2 कर देंगे. Here also it is double, तो C को भी C/2 करेंगे. So your glow becomes constant. अरे क्या बात है. So if nu is doubled, then to make glow remains same, L should be L/2 and C should be C/2. Okay, so that Z remains the same. क्योंकि ये डबल हो रहा था, इसको आधा कर दिया, फिर ये डबल हो रहा था, इसको भी आधा कर दिया. एंड सो योर आंसर इज अगेन सेम. Z is same, Z is same, so IV is also same and brightness is same. Okay, अच्छा लगा आपको? So now we move towards question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 देख के आपको हंसी आ जाएगी. क्यों आ जाएगी? अरे हम पहले ही कर चुके हैं यार. कैसे देखो, लुक हियर. Here a capacitor is connected with AC and a bulb is here. तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि IV इक्वल टू EV अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर.
So EV upon under root R square and XC means 1 upon 2 pi nu c का square. This is okay. Now what happens if frequency increases? पूछा क्या उन्होंने? If frequency increases, what happens? So just now we have this is current. So glow is there. तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, देखें दो है यहाँ. फर्स्ट पार्ट क्या था? इफ के डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड इन दी कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया हमने, तो क्या होगा? तो फर्स्ट केस ले रहा हूँ, यानी व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, when a dielectric slab of dielectric constant K is inserted inside plate of capacitor. So you know very well यार कि जब भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दे या कंडक्टिंग स्लैब रख दे, कैपेसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस. एक कैपेसिटर है, उसके बीच में कुछ भी डाल दो, मंचूरियन डाल दो, नूडल्स की तरी डाल दो, माइका डाल दो, ओके, पॉलीस्टीन डाल दो. मैं जोक कर रहा हूँ, हम लोग मंचूरियन तो नहीं डालेंगे, वो तो हम खाएंगे. सो इफ के इंक्रीजेज देन कैपेसिटी के सी नॉट, यानी C increases, capacity increases. So when capacity increases, then what happens? We know very well XL equal to 1 upon omega C. It means XL inversely proportional omega, sorry, XL inversely proportional C. If C increases, XL decreases. So if C increases, XL decreases, so current increases, and when current increases, brightness of bulb also increases. ये हम कर चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ कि when a dielectric slab of dielectric constant K is inserted here in between the plates of capacitor, so capacitor की capacity increases, XL is inversely proportional C, so C increases, XL decreases, XL decreases मतलब Z decreases. So IV increases and brightness increases. ये तो first case हो गया. Now in the second case they are asking कि frequency increases, अब क्या होगा? ठीक है, वो भी देख लेते हैं. Second case, frequency increases. Okay. Now what happens when frequency increases? सो फ्रीक्वेंसी और एक्सेल का क्या रिलेशन है ये देखना पड़ेगा. सो एक्सी इक्वल टू, अरे यार यहाँ एक्सेल क्यों लिख देता हूँ मैं, सॉरी है, ये एक्सेल नहीं है, दिस इज एक्सी है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे एक्सेल ही याद हो गया, ये एक्सी है, नॉट एक्सेल, सॉरी यार. सो एक्सी इज 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, सो एक्सी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यू, राइट. So nu increases, तो क्या होगा? ये आ गया, अरे मैं तो यहीं आ गया. Nu increases, Xc decreases, IV increases and brightness increases. So in both the cases, if capacity increases or frequency increases, Xc decreases, and Xc decreases means opposition decreases, so brightness increases, right? देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. 4 में क्या कहा इन्होंने? अरे वही ये बल्ब लगा, दिस इज कैपेसिटर एंड इट इज कनेक्टेड विथ डीसी और एसी. पहले डीसी से कनेक्ट है, मान लो किस पे कनेक्ट है? डीसी. सो व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ डीसी, व्हाट हैपेंस? व्हाट इज द ब्राइटनेस इफ कैपेसिटी डिक्रीजेस? अरे बल्ब जलेगा ही नहीं, अरे डीसी को ब्लॉक कर देता है. क्या कर देता है डीसी को? ये ब्लॉक, याद है ना? सो विद डीसी फर्स्ट ऑफ ऑल, सो
Xc is infinite for DC. Therefore, bulb does not glow. और ये क्यों होता है इनफाइनाइट? आपको याद है? नहीं याद तो फिर बता देता हूँ. X equal to 1 upon 2 pi nu c, and for DC frequency is 0, and so it is infinite. Means capacitor blocks DC and hence बल्ब जलेगा ही नहीं भाई. कैपेसिटर बढ़ाओ या कम करो, कैपेसिटेंस कुछ नहीं होगा. एसी पे आ गया. एसी से कनेक्ट है तो क्या होगा? तो एसी से कनेक्ट होगा तो बल्ब ग्लो होगा, है ना. सो व्हाट हैपन्स व्हेन C डिक्रीजेस? सो XC 1 upon omega C, तो XC is inversely proportional C. If C decreases, XC increases, यानी अपोजिशन इंक्रीजेस. Therefore current decreases and so brightness also decreases. बच्चों ये मैंने उल्टा काम कर दिया. अभी तक मैं कैपेसिटी बढ़ा रहा था. Now capacity decreases, XC increases, and so current decreases and brightness also decreases. करेक्ट. अब अपन 2-3 क्वेश्चन और हैं, उस तरफ चलते हैं. मैंने वहां लिखा हुआ है, देखिए. फटाफट खत्म करेंगे इसको, घबराओ मत आप. दिख रहा आपको? दूर तो नहीं हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. हियर a coil is connected with a bulb inductor. First, if soft iron rod is inserted, इसमें soft iron rod insert कर दी, क्या होगा? देखिए दोनों केस लेते हूँ कि IV इक्वल टू EV अपॉन Z होता है एंड EV अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. सो EV अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 पाई म्यू L का स्क्वायर, और मे बी एक्सेल क्या करेगा. सो इफ सॉफ्ट आयरन रॉड इज इंसर्टेड, ये पार्ट, ब्राइटनेस यू नो वेरी वेल, brightness depend upon current directly proportional IV square. So when soft iron rod inserted, so L increases, and we know that XL equal to omega L, यानी XL directly proportional L. So XL increases. What happens when XL increases? When XL increases, IV decreases, क्योंकि Z increase हो जाएगा. Z increase हो जाएगा. IV decreases and so brightness decreases. बच्चे brightness क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? brightness कम. ये देखो आप, फिर से बता रहा हूँ. When soft iron rod insert, L increases, so XL is omega L, so XL increases, so Z increases, current decreases and brightness decreases. Okay. Second case, if DC source ले लिया यहाँ पर, कौन सा सोर्स ले लिया? DC सोर्स ले लिया. तो DC के साथ क्या होता है? 2 पाई न्यू L होता है, याद होगा आपको. यानी it does not oppose DC. ये DC को अपोज नहीं करता. तो आप सॉफ्ट आयरन डालो या निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. सो बी पार्ट लेता हूं मैं. बी विथ DC सोर्स XL इक्वल टू ओमेगा L 2 पाई म्यू L and DC frequency is 0, so opposition is 0. It means bulb glows with maximum brightness, जितनी उसकी brightness है, और ये insert करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. After inserting soft iron rod
no change in brightness, no change in brightness, नो चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, बल्ब के ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं आने वाला। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज डीसी का ये अपोज करता ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्केच ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट विथ फ्रीक्वेंसी। इम्पीडेंस का बोला है इसने, इम्पीडेंस मीन्स पूरा एलसीआर सर्किट ले रहा है बेटा ये। तो एलसीआर ये आईएम भी ले सकते हैं, आई नॉट भी ले सकते हो आप, आईवी भी ले सकते हो। सपोज आईएम ले रहा हूँ मैं, वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और दिस इज आर स्क्वायर एंड एक्सएल क्या था? एक्सएल क्या था यार? 2 पाई न्यू एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी का होल स्क्वायर। तो if I am taking variation of Z impedance here with frequency, this is series LCR circuit, and you know very well in series LCR circuit, when XL equal to XC, then Z is equal to R, and that is known as resonant frequency. और उस समय Z जो होता है इम्पीडेंस वो मिनिमम होता है। तो इम्पीडेंस ऐसा आएगा इसका, ये ग्राफ आएगा। This is the graph. This is nu naught और nu r, और यहाँ पर z मिनिमम होगा, z is minimum and z is equal to r here at resonance. So this is the graph. Okay, अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जल्दी करने हैं ना, तो देखते हैं। There are 3 circuit diagrams. Here R is connected with AC, L is connected and C is connected. If frequency increases, find effect on current in each case. तीनों केस में करंट का बताइए आपकी क्या इफेक्ट आने वाला है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। So you know very well, resistance is independent, current in resistance is independent of frequency. उसको कोई R को फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है। So ये फर्स्ट केस ले लिया मैंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सो फर्स्ट केस में नो चेंज इन करंट बिकॉज R इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है, तो एल है तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। सो न्यू इंक्रीजेस एंड एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, तो एक्सएल इंक्रीजेस सो करंट डिक्रीजेस। सो इन सेकंड केस करंट डिक्रीज हो जाएगी, है ना। इन थर्ड केस कैपेसिटर तो एसी का अपोज ही नहीं करता भाई, याद है ना। XC is equivalent to 0 for AC, therefore no effect on current. इस पे भी करंट पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा ना, थोड़ा सा पड़ेगा बताता हूँ कैसे, देखिए। XC 0 जरूर होता है, थोड़ा सा मैं और इसको एलॉबरेट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा तो फर्क पड़ना चाहिए, दैट इज करेक्ट। सो थर्ड केस में XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी यानी 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। सो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यू, इफ न्यू इंक्रीजेस XC डिक्रीजेस करंट इंक्रीजेस। तो अगर हम पहला वाला केस में कि XC इक्विवेलेंट टू 0 था तो वो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ हमको एक्यूरेट वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने दोनों बताया आपको। तो ये वाला लिखना है आपको कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस XC डिक्रीजेस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड सो करंट इंक्रीजेस, तो इस केस में भी करंट बढ़ेगी। नाउ गो टू दी क्वेश्चन नंबर 8। इन केस ए देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एमीटर। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि दे आर
measuring the value by heating effect of current, that is virtual value. जितने भी एमीटर वोल्टमीटर है हमारे पास, दे आर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बिकॉज देयर बेसिस इज टू मेजर वर्चुअल करंट. वो एवरेज करंट मेजर नहीं करते, एवरेज तो जीरो ही आएगा बाद में जाके. तो जितने भी मेजर कर रहे हैं दे आर वर्चुअल वैल्यू. मैं पहले बताना चाहता था. और इस केस में देखा तो डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा, जीरो है. तो नो डिफ्लेक्शन इन बी वाई. क्यों? अरे इट इज कनेक्टेड विद डीसी एंड कैपेसिटर ब्लॉक सीसी. In second case, capacitor is connected with DC and capacitor blocks DC. It means Xc is infinite for DC. So no flow of current and so there is no deflection. Last question. एक कैपेसिटर है, एक वेरिएबल रजिस्टर है, एक बल्ब है. नंबर वन, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमूव्ड और इंसर्ट इन कैपेसिटर. इट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट ब्राइटनेस ऑफ बल्ब. तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार फिर आपको बताता हूँ. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट की. डाइलेक्ट्रिक स्लैब insert. So when insert, then capacity increases and Xc is 1 upon omega c. Xc is inversely proportional C. So C increases, so Xc decreases, current क्या होगी? Increases, therefore glow increases. इसका ग्लो बढ़ जाएगा. Because capacity increases, Xc decreases, current increases, glow increases. Now suppose आप इंसर्ट नहीं कर रहे हो, आप इसके अंदर से निकाल रहे हो, रिमूव करा नहीं. क्या किया? रिमूव. When you remove it, then capacity decreases. Capacity decreases, so ये कम हो गया तो ये बढ़ गया. Xc increases. So Xc increases, so IV decreases and glow is also decreases. Right? Last but not the least, if capacitance remains same and R increases, resistance बढ़ा दिया. तो ऐसे भी बता सकते हो आप लोग. अरे भाई रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? R इक्वल टू V अपॉन I. रेजिस्टेंस बढ़ गया तो I कम हो गया, है ना. सो सेकेंड पोर्शन है, ए R increases, current decreases, glow also decreases. तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको एक्सेल और एक्सी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और आपको समझ में आए होंगे. इसमें कई बार एक क्वेश्चन और आता है, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया नहीं है. ये रेजिस्टेंस लगा है, इसके साथ एक बल्ब लगा है B1, इंडक्टर, बल्ब B2, कैपेसिटर, bulb B3 and they are connected with AC source of EMF. तो when K is closed, कौन सा पहले जलेगा? तो सबसे पहले B1, B3 और लास्ट में B2. B1 की ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, B3 की भी ज्यादा होगी और B2 की सबसे कम होगी बिकॉज इट अपोजेस. तो B1 glows first, B1 B2 glows first instantly. कैसे जलेंगे ये? Instantly. And B3 glows after some time with less glow या less brightness. With less brightness. और इसी में केस आ जाते हैं. अगर यहाँ पर इंसर्ट किया है सॉफ्ट आयरन रॉड तो ग्लो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सेल बढ़ जाएगा. अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, Xc डिक्रीजेस, ग्लो इंक्रीज. राइट? तो ये आ गए होंगे आपको. सबसे पहले रेजिस्टेंस में ग्लो होता है इंस्टेंटली बिकॉज करंट एंड EMF दे आर इन द सेम फेज. देयर इज नो फेज डिफरेंस. तो प्यारे बच्चों
बड़ा हो गया है मुझे लग रहा है ये वीडियो। खुश रहो, खुश रहो, अच्छा खाना खाओ, माँ बाप की सेवा करो और प्यार से रहो।